कहते हैं कुछ लोग पैदा ही होते हैं दुनिया को बदलने के लिए। उनके कदम जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ उम्मीदें उगने लगती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्सियत हैं सीमा मल्होत्रा जी, जिनके सपनों ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि अनगिनत जिंदगियों को दिशा दी। उनकी सोच में संवेदनशीलता है, उनकी आंखों में समाज के लिए सपना और उनके हाथों में कर्म की शक्ति। उन्होंने न सिर्फ एक एनजीओ की नींव रखी बल्कि एक सोच को जन्म दिया, स्कोप प्लस, जो हर उस आवाज़ के साथ खड़ी होती है जिसे अक्सर दुनिया अनसुना कर देती है। यह एनजीओ कोई संस्था नहीं बल्कि एक आंदोलन है, जहां हर दिन मेहनत से बदलाव की इबारत लिखी जाती है, जहां हर मुस्कान के पीछे होता है एक निस्वार्थ प्रयास और जहां हर सफलता के पीछे होता है एक नाम, स्कोप प्लस। My name is Seema Malhotra and I'm founder of an NGO called Scope Plus. It's a volunteer-based NGO which I started in 1996. And I've done MA in social work, and after that I did a job in Springdale as a social worker counselor. And in that I was looking after adult education project in Delhi. दिल्ली में जो सर्व साक्षरता अभियान समिति था उसके अंतर्गत आई वॉज वर्किंग विद नेशनल लिटरेसी मिशन इन HRD मिनिस्ट्री, एंड आई वॉज coordinating about 70 to 80 schools under Mrs. Rajni Kumar, who has been my mentor and my guide and my boss. She's not there anymore, but I owe everything to her. Hi, so my name is Shyam Malhotra and I am Mrs. Seema Malhotra, who is the founder and the person who is running Scope Plus. I am her husband. So could you tell us more about Seema ma'am? Her journey? Well, Seema started Scope Plus, I think, in 1996, and she is essentially a one-woman band, and she has been running and managing all the affairs of Scope Plus. I see her as a very dedicated person towards providing support and help to various sections of society. Her early work was in the Tihar jail with the under trial prisoners, which is a fairly difficult task, and she continued to do that for many years. And now, of course, she is providing support to various segments of society in many different ways. So a very committed and a very dedicated individual towards public service. How do you see her as a person? Like I said, a completely devoted person to the cause that she works for. And there's a word in Urdu, Junoon. I think that is what describes her the best. And to the exclusion of many other things, but she's completely dedicated to Scope Plus. Hi, my name is Astha and I am Seema Malhotra's elder daughter. I used to be a student volunteer with Scope Plus almost 2+ decades ago, and from there I grew into roles in community development and social enterprise, particularly in the work that was happening in Tihar jail at the time. Throughout the years, it has been wonderful seeing that the organization has evolved but has stayed true to its grassroots motivations for advocacy as well as for mobilization work across a range of social issues. I wish the organization and all the stakeholders in it all the very best for this new milestone. Hi, my name is Navta. I'm Seema's younger daughter, and I've been associated with Scope since its inception. I have also witnessed my mother working as a social worker since I was born. I also work in the development sector, particularly because of my experience and exposure of supporting her with Scope. Getting up every day and working and trying to help people is not easy, especially in a country like India where we have a lot of problems. But my mother always does it with a lot of hard work and ease, and that's something that's really inspiring to see. So after leaving my job in Springdale, they requested me to stay on to do a 26th January program on the Rajpath Bhavan, and I did a
program for education for all for Republic Day parade, which has been a feather in the cap for me, and the most memorable experience of my life, and where I felt that I've contributed to the nation also. And the moment this finished, one of the colleagues, they were working on education, Bhagishri Dingle, she invited me to become a trainer for her teachers in adult education. I made a team of trainers with the help of my another colleague from HRD, Mr. Venkat Seshaya, and my mother, and two of her friends. They were all senior citizens and working in very respectable posts. They joined me as trainers, and then, as they say, it's in history. While I was working as a trainer, we did 5 training. They told me that why don't you coordinate the whole project? While coordinating the whole project, Ashok Sharma, another project coordinator there, I think, who's the director of Caste Plan, he told me, Seema ji, abhi aapko NGO बनना पड़ेगा. And I said, what is an NGO? मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, पता था तब. अभी तो everybody knows good or bad things about NGOs, but in 96 I was not really aware what is an NGO, how do you start it. So Caste Plan is in Govindpuri. I had to come back to drop my car to my husband in Panchsheel Enclave. So at the Savitri red light, the moment I stopped and braked the car, scope came in my mind, and the scope was born right there, and it was about 10th or 11th Feb 1996. कास्ट प्लान का वो नींव थी स्कूल की, तो क्या आप हमें उस नींव के बारे में और बता सकते हैं कि वो क्या था और कैसे शुरुआत हुई? सो एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ी थी क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, एंड आई हैड यंग गर्ल्स, एंड मेरे इन लॉज बेड रिडन तो नहीं थे बट रूम रिडन थे, और बहुत काम फैल गया था मेरा. तो मैंने सोचा मैं छोड़ के आराम करूँगी घर में, बट आराम करने की जगह 26 जनवरी किया, और उसके बाद अबाउट 23 फेब कास्ट प्लान से पहले ही फ़ोन आ गया था. और भाग्यश्री जी ने कहा कि आप जो एडल्ट एजुकेशन का काम करते, व्हाई डोंट यू डू इट हियर, जैसे मैंने पहले भी बताया. कास्ट स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी एड स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम. तो वो एक कम्युनिटी पिकअप करते हैं, उसमें सारा पूरा काम करते हैं बच्चों के थ्रू. तो जैसे एक बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया, तो उसको 12वीं तक पढ़ाएंगे, उसके पेरेंट्स को भी, सबको वो देखभाल करते. उसी के अंतर्गत जो पेरेंट्स में मदर थी, उसकी देखभाल हम कर रहे थे एज एडल्ट एजुकेशन. मेडिकल का कुछ और चल रहा था, तो बहुत काम उनका फैला हुआ था. सो उनके कारण जो अशोक शर्मा थे, मेरे शायद जूनियर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से, उन्होंने मुझे बैठ के बताया कि सीमा अब तुम एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग भी मैं अकेले नहीं कर रही थी. आई नीडेड 4-5 पीपल. 5 दिन की ट्रेनिंग, 8 घंटे की एक ट्रेनिंग होती है, तो उनके कारण हम लोग. और तो मैं यही कहूँगी कि कास्ट प्लान के कारण ही स्कोप प्लस का. और मैंने एक ट्रेनिंग में सीखा था कि जब गंगा है ना, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से. तो कभी भी गंगोत्री को भूलना नहीं चाहिए. जो मैं आज सबको बताना चाहती हूँ, जहाँ से तुम्हारी शुरुआत होती है, जो तुम्हारी मदद करता है, उसको ज़रूर एक्नॉलेज करो. तो मेरी कोई भी टॉक, कोई भी राइटअप बिना कास्ट प्लान के मैं आगे बात नहीं करती हूँ. वो है तो वो थे तो हम हैं. मैम, एनजीओज में इतनी सारी फील्ड है, तो आपने एडल्ट एजुकेशन ही क्यों चूज़ की? अब द थिंग इज़, मेरी लाइफ में मैंने कभी भी कुछ सेलेक्ट नहीं किया. जब मैंने फर्स्ट जॉब की, तो मेरी छोटी डॉटर ने, मेरी बड़ी डॉटर जो थी, जो खाली 6 साल की थी, उसने स्प्रिंगडील स्कूल में मेरा नाम दिया. उसकी टीचर की टांग टूट गई थी, तो वो 15 दिन की जगह 3 महीने चली, तो मैं वो टीचर बन गई. उस बीच में मैंने बीएड कर लिया था, तो उधर से ही सीनियर स्कूल पूसा रोड से फ़ोन आ गया कि मैम आप आइए इंटरव्यू के लिए. मैंने अप्लाई नहीं किया था कहीं भी, कभी भी नहीं अप्लाई किया. और वहाँ पे गई तो बोलते हैं कि आप तो एमए सोशल वर्क भी हो और बीएड भी हो, तो आप क्यों ये पढ़ाना क्यों चाहती हो? मतलब मैम मैं तो नहीं पढ़ाना चाहती, आपने बुलाया मैं आ गई. तो बोले कि इतने कम सोशल वर्कर्स हैं, तो आप सोशल वर्क करो, हमारे पास ये जॉब है एडल्ट एजुकेशन की. मतलब मैं कर लूँगी, आपने बुलाया, आई डोंट माइंड ट्राइंग. तो जॉइन मैंने सोशल वर्कर की तरह किया, लेकिन आई वेंट फॉर एडल्ट एजुकेशन. और जहाँ तक एडल्ट एजुकेशन का सवाल है, हमारा पूरा परिवार, मेरे पेरेंट्स भी एमए हैं, तो हमारा पूरा परिवार एजुकेशन में बहुत बिलीव करता है. और मैंने चुना नहीं था ये फील्ड, बट उस फील्ड में से मैं हर जगह पहुंच गई.
प से पुलिस के पास, ड से डर की तरफ, फ से फल में खाना क्या खाना है, या से योगा, मतलब कुछ भी करिए आप। क से क ख ग से लेके च छ जा तक आप कुछ भी कर सकते हो। तो वही मैंने किया कि एडल्ट एजुकेशन में हमने काम, का से काम, आपने स्कूल में पढ़ा था का से कान, लेकिन बड़े आदमी को हम काम समझाते हैं कि भाई काम करना है तभी जिंदगी बनती है। तो वो हमने काम करना भी शुरू कर दिया, बैग्स बनाने शुरू कर दिए। तो कहाँ एडल्ट एजुकेशन, कहाँ काम। और फिर मस्ती, म से मस्ती, तो मस्ती भी खूब कराते थे लेडीज़ को, बच्चों को। जेल में भी दिवाली मनाना, क्रिकेट अभी भी मैं खेलती हूँ एज आई टोल्ड यू। तो मैं जेल में तो नहीं करा पाई थी क्रिकेट मैच, बट जो टीएसपी है तमिल पुलिस, और मेरे स्टूडेंट जो दक्षिणपुरी के थे वो आके वहाँ पे खेले। जहांगीरपुरी की एक टीम आई जनकपुरी खेलने के लिए, और कल परसों मैं श्री फोर्ट में थी, मैंने थोड़े से बॉलिंग कर ली। मैम कैश प्लान के बारे में कुछ बताइए, और सीमा मैम से आप कैसे जुड़े वो भी बताइए। मेरा नाम मंजू उपाध्याय है। मैं कास्ट प्लान से कैसे जुड़ी, तो मैं कास्ट प्लान से जुड़ी हूँ 88 के अराउंड जुड़ी हूँ। और ये पुरानी संस्था है, 75 में रजिस्टर्ड थी, पुणे में रजिस्टर्ड हुई थी। और मैं दिल्ली में इसके साथ जुड़ी। इसके पहले भी मैंने सोशल वर्क किया, प्रैक्टिकल मतलब कम्युनिटी के लिए काम किया था। जामिया मिलिया के साथ किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोजेक्ट में किया था। तो कास्ट के साथ जुड़ी, और जो उस टाइम पे हमारे पास सबसे बड़ा एरिया था जोग्राफिकली, वो था संगम विहार का, जहाँ हमें काम करना था। और दूसरा था गोविंदपुरी के स्लम, जो बहुत बड़े स्लम हैं, वहाँ पे काम करना था। और वहाँ पे जो हमारे पास बड़ी समस्या आई थी, वो समस्या थी महिलाओं की साक्षरता की। शिक्षा की बात नहीं कर रहे, एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, साक्षरता की बात कर रहे हैं, जहाँ वो खुद पढ़ लिख नहीं पाती थी। ज्ञान था, गांव से आई हैं तो उनके ज्ञान तो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उनके साथ हम जुड़े, और उनकी समस्या को दूर करने के लिए कि कैसे काम किया जाए, इसी सब में सोचते सोचते सीमा जी के साथ में हमारा जुड़ाव हुआ। उस संस्था में मैं एजुकेशन का प्रोग्राम देखती थी उस समय पे। तो सीमा जी के साथ जुड़ाव हुआ, एनालिसिस किया हम लोगों ने कि हम बात तो कर रहे हैं कि हम पढ़ा देंगे, लेकिन उस पढ़ाने में उनकी समस्याएं क्या है। वो महिलाएं हमारे पास अगर नहीं आई हैं या अभी तक नहीं पढ़ पा रही है, तो जब तक हम उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक ये मुश्किल है कि हम उनको पढ़ा पाएं। 1-2 दिन आएंगी, ड्रॉप आउट हो जाएंगी। तो उन सब का एनालिसिस किया कि उनकी बच्चों की समस्या है, उनके हस्बैंड की समस्या है, घरेलू कामों की समस्या है, रोजगार की समस्या है, जिससे उनको कैसे टाइम निकालना है और कैसे उनको मोटिवेट किया जाए। क्योंकि अक्षर ज्ञान के लिए मोटिवेट खाली कर पाना बहुत मुश्किल होता था, और अभी भी बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे प्रोग्रामों से जोड़ते जोड़ते महिलाओं को लिया और उनको पढ़ाना शुरू किया। तो ये हमारा सीमा जी से जुड़ने का एक मुख्य प्रोग्राम था, जिसके साथ हम जुड़े थे। साथ में एक दूसरा प्रोग्राम और था, जो संस्था में सीमा जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम मेरी दूसरी कुलीग उस प्रोग्राम को देखती थी। वो था कि तिहाड़ जेल में जो लोग हैं, जो कैदी हैं, उनके बच्चों को मदद की जरूरत थी हर तरह से। इमोशनल भी चाहिए, काउंसलिंग भी चाहिए, साइकोलॉजिकल भी, और साथ में पैसा और देखभाल तो चाहिए ही चाहिए, एजुकेशन। तो वो बच्चे हम आइडेंटिफाई कैसा करें, ऐसा सोच चल रहा था कि वो तो जेल में है। उस काम को हम लोग करना चाहते थे। सीमा जी ऑलरेडी तब तक तिहाड़ जेल से जुड़ चुकी थी, और किरण वेदी के टाइम से और काम कर रही थी, तो उन्होंने हमें वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद सीमा जी हमारे साथ बहुत सालों तक जुड़ी रही। अगर हमें इंटरव्यूज लेने हैं, लोगों का सिलेक्शन करना है, तो एचआर की तरह वो कंसल्टेंट बन के हमारी मदद करती। कुछ और किसी चीज़ में पड़ जाते, किसी स्टडी को करना है, तो सीमा जी को याद करते, सीमा जी मदद करो, इससे कैसे करेंगे, गाइड करो। तो वो हमेशा तैयार रहती थी। गए थे मोनीला नाम की, वो यूनिट 6 बना था तब, है ना? यूनिट 6। हाँ। तो एक्चुअली जब तीन एरियाज में हमने काम किया, ये स्लम एरिया था। जो आप बता रहे थे ना कल, वो 3 नाम जो कास्ट, अभी भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप और नेहरू कैंप। वहाँ हमने दिल्ली में जो काम शुरू किया था, 84 में किया है शायद, 84 में, तो वहीं से शुरू किया है। वहीं से शुरू किया। और हमने 96 में ज्वाइन किया, अगर आपको याद है, सपेरा बस्ती, बदरपुर। एक्चुअली हम शुरुआत की थी अर्बन स्लम्स के साथ, जिसमें अभी जैसे मंजू जी ने बताया है, नेहरू कैंप, नवजीवन कैंप और भूमिहीन कैंप।
इन 3 में काम शुरू हो गया, पर हमको थोड़ी फंडिंग बढ़ी तो हम सेमी अर्बन एरिया है बदरपुर का, वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो स्नेक चार्मर्स कम्युनिटी बोलते हैं, जिसको उनका पेशा है सिर्फ सांप पालना, बिच्छू पालना, वही उनका लाइवलीहुड भी है, वही उनका लाइफ स्टाइल भी है। वहाँ पर हमने काम शुरू किया। इनिशियली बहुत सारे चैलेंजेस आए, नहाने धोने से कोई मतलब नहीं, स्कूल से जस्ट अक्रॉस द रोड स्कूल है सरकारी, एनरोलमेंट उस कम्युनिटी की जीरो, गर्ल्स के बारे में सोचा ही नहीं। एक बात याद आई, जब हम पढ़ा रहे थे तो टीचर्स थे, तो टीचर्स को पढ़ाना था, तो हमारे वो MSW स्टूडेंट्स भी आने लगे ट्यूसडेज और थर्सडेज को। सपेरा बस्ती में एक सांप निकल गया उसके अंदर से, उनकी टोकरी में से, और इतना शोर मचा, पता नहीं उन्होंने कहाँ से फ़ोन लिया और मुझे फ़ोन किया। एक लेडी थी बिंदु रावत, आई डोंट नो, आप वो वहाँ की सुपरवाइज़र हमने चुनी थी ताजपुर पहाड़ी में, वो आज तक टच में है, वो गीता के भजन करती है और पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाह रही थी। मैं ढूंढ रही हूँ तहज़ुबिन निशा को, आप शायद नहीं जानते होगे, वो यूनिट 3 की, यूनिट 5 की है, सुना लग रहा है। और वो क्या करती थी, सारे पॉलिटिशियंस के लिए इकट्ठा करती थी लोगों को, और बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत याद आती है उसकी। आप कहाँ थी 90 जब हम? मैं हेड ऑफिस में ही होती थी जो गोविंदपुरी का था। मेरा काम था कि जितने भी गोविंदपुरी में या संगम विहार में, बदरपुर में जितने एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उनको मैं देखती थी। आप एडल्ट एजुकेशन में इतने सारे लोगों से मिले, तो उसमें आपका यादगार मोमेंट कौन सा है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा था, अभी 4-5 साल पहले एक फ़ोन आया, और जैसे आजकल अभी तो हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं, लोगों के फ़ोन नहीं उठाते, बट 4-5 साल पहले ये हालत नहीं थी, तो अजीब सी आवाज़ थी, और उस लड़के का फ़ोटो भी आ रही थी, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ, थोड़ा हीरो लग रहा, और सीमा मैडम, मैंने बोला कौन बोल रहे हैं? मैं कोमल बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मुझे याद था उसका नाम कमल, तो जब उसने कोमल बोला, एक्चुअली रजौरी गार्डन में 1998 में हमने एक बालवाड़ी शुरू की थी, उसमें अंसल जो बिल्डर्स हैं उनके जो लेबर थे उनके बच्चे, और डीडी ने हमें एक शॉप दी हुई थी, खाली शॉप्स थी जो, उनमें से एक शॉप हमें दी हुई थी प्री स्कूल चलाने के लिए, वहीं पे बच्चे आके पढ़ते थे, और वहीं पर एक लड़का था जो कि डस्टिंग करता था किसी और शॉप में, उसके 3 भाई बहन हमारे पास पढ़ते थे। छोटी बात है, 98 की बात खत्म हो गई। सो आई थिंक लॉकडाउन में 2020 के आसपास या 18 में उसका फ़ोन आया कि मैम मैं गंगा सरस्वती का भाई हूँ और मैं कोमल बोल रहा हूँ। मैंने बोला कौन है आप? तो उसने बताया कि मैं ऐसा था, मैं अपने पापा के साथ मजदूरी करता था, तो मैं नहीं पढ़ने आता था, कभी कभी आता था लेकिन रोज़ नहीं आता था। अब मैं जब गांव वापस गया तो मैंने अब उस दुकान, जो दुकान लगी हुई थी फोटोकॉपी की, मुझे याद था उन्होंने शीशे में आपका वो कार्ड रखा हुआ था, विजिटिंग कार्ड। उस बच्चे को याद था कि वो विजिटिंग कार्ड सीमा मैम का अभी भी शायद पड़ा। बाई चांस वो जो ओल्ड आदमी थे, जो दुकानदार थे, उन्होंने वो खाली नहीं किया था शीशे के नीचे, तो उस बच्चे ने मुझे फ़ोन किया। अब उसकी शादी हो चुकी थी। फिर मैंने, तुम क्या कर रहे हो? कहता मैंने मजदूरी की पिताजी के साथ, अपनी माँ को और अपनी बहनों को, दोनों को, सबको घर वापस भेजा गांव में कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो उन सबको पढ़ाया। मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने मोबाइल की दुकान खोली हुई है, ये देखो मैडम फ़ोटो है, तो अब वो दिवाली हो, नया साल हो, वो फ़ोन करता रहता है। तो मुझे ये बहुत सुंदर लगता है कि इतनी मेहनत जो हमने की, तो कहीं किसी को लगा कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है। ये खाली था तो मैडम को सजेस्ट किया गया कि डीजी सर से बात करें, तो उनसे बात हुई तो फिर हमें ये मिल गया। Hello, myself Sanjeev Puri. I retired as a general manager level in State Trading Corporation of India as IT and journal administration head. स्कोप प्लस से मेरा नाता पिछले 20-25 साल से है, और यहाँ पे लगभग 20 साल पे इसी फ्लैट में जहाँ पर आप कर रहे हो, यहाँ पर कंप्यूटर सेल था, उसमें मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता था। उसके बाद रिसेंटली लास्ट 2 ईयर से हमने स्कोप प्लस की वेबसाइट scopeplus.org डेवलप की है। आप उस वेबसाइट पे देखिएगा, जो कि डिज़ाइन एंड डेवलप हमने किया, और मेरे साथ एक BBA का लड़का है
जो मेरे ऑफिस में मेरी कुलीग का बेटा है जिसने उसको पूरा डेवलप किया है, और हम अब उसको आगे ले जा रहे हैं। उसको वेल मेंटेन जितनी भी एक्टिविटीज स्कोप प्लस की और क्या क्या जर्नी है और उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन किए हैं जो छोटे मोटे, वो सारा उसमें डिटेल है। आप उसको विजिट कीजिएगा। मेरा काम उनकी वेबसाइट का एट प्रेजेंट अच्छी तरह से मैनेज करने का है। हाँ, मेरा नाम डिम्पल बिंद्रा, स्टाफ क्वार्टर से हूँ। हस्बैंड यहीं जॉब करते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हैं वो। जब खुला था यहाँ पे तब से हम जानते हैं उनको, सीमा मैडम और शशि मैडम दोनों को। तब से ही हम जानते हैं। जब हमारे बच्चे छोटे थे, मेरे ख्याल से 2.5 साल के बच्चे थे जब हमने स्कोप प्लस में डाला था। उसके बाद मैडम ने कहा कि भाई आप लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो तब से मैं इनके साथ टीचर के लिए लगी। छोटे बच्चों को पढ़ाते थे यहाँ पे, पेंटिंग भी सिखाते थे, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी होता था, कंप्यूटर भी होता था यहाँ पे, और शशि मैडम हमारे यहाँ सिलाई सिखाती थी तब। हाँ, पहले ये ओपन एरिया था तो हम यहाँ पर इस पर बैठकर पढ़ाते थे बच्चों को। फिर वहां पर पढ़ाने लग गए, दैट स्पेस। वहां पर स्लैब डली हुई है अंदर, इनसाइड छोटा सा रूम है, वो तो ऐसे एरिया वाइज ही दिख रहा होगा। तो वहां पर बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे। 2001 से 2012 तक मैंने स्कोप के साथ काम किया। उनके साथ तो यहाँ तक पहुंचे ही मैम की वजह से। मैम, आपका अडल्ट एजुकेशन का सफ़र गली मोहल्ले और स्कूल से जेल तक कैसे पहुंचा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे भाग्यश्री डेंगले का फोन आया था, इसी तरह मिस्टर RS गुप्ता थे जो DG थे किरण बेदी के बाद 1996 में। मुझे अभी याद है, दोपहर की बात थी और मैं कहीं से बाहर से वापस आई थी और मिस्टर RS गुप्ता का फ़ोन आया कि मैं DG बोल रहा हूँ तिहाड़ जेल से और आप प्लीज़ आके हमारी जेल में काम करिए। मैं चली गई और उनको बताया कि जी मैं पहली वाली जॉब छोड़ चुकी हूँ एडल्ट एजुकेशन की, तो अब मैं एक NGO बन चुकी हूँ। तो इसका मतलब वो फरवरी के बाद आया होगा फ़ोन, मुझे याद नहीं है कब आया था, बट उन्होंने हमें इनवाइट किया। तो वही हमारी जो ट्रेनर्स टीम थी, मम्मी मिसेस प्रेमलता कपूर, संतोष खुल्लर और मिस्टर खुल्लर, हम चारों पहुंच गए जेल में। और हमने क्या किया कि वहाँ जो एजुकेटेड लड़के थे उनको पढ़ाना, उनको ट्रेनिंग दी, क्योंकि कास्ट प्लान में उनका प्रोजेक्ट था, मुझे दे देते थे, यहाँ पे मुझे स्क्रैच से शुरू करना था। सो सुपरिटेंडेंट्स और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स की मदद से हमने एजुकेटेड लड़के ढूंढे, उनको टीचर बनाया, उनको ट्रेनिंग दी, वो मेरे वॉलंटियर्स बन गए। उन्होंने फिर 10-10, 15-15 लड़के चुने जो कि पढ़ना चाहते थे। तो इस तरह हमारी एडल्ट एजुकेशन जेल नंबर 5 में जो 18 से 21 साल के लड़के थे, जो यूथ कहलाता था, उनको पढ़ाना शुरू किया हमने। जेल में कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी तक इंस्पायर करता है? जी, मेरी सारी पर्सनालिटी मैं सबको कहती हूँ जेल से ही बनी, क्योंकि वहीं से मैंने विपश्यना सीखी, ब्रह्म कुमारी के साथ आई। जितने भी कोटेशंस थे ऑन द वॉल्स ऑफ तिहाड़ जेल हैव इंस्पायर्ड मी, जो मेरी लाइफ को मकसद देता है या लाइफ को एक्सप्लेन करता है, वो है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो ये इकबाल ने लिखा था आई थिंक, एंड ऑल दैट हैज मेड माय पर्सनालिटी। जो याद आ रहा है अभी आप लोग से बात करते हुए, एक फोन आया था मुझे अभी याद आ रहा है, हमार बचुआ कैसा है। मैंने ये कौन सी भाषा है, कभी सुनी नहीं थी, तो बोला नहीं, हमारे बेटे ने आपका नंबर दिया, सुना कि आप उनका बहुत ध्यान रखती हो जेल में। और वो लड़का हमारा मेन सुपरवाइजर था, जो कि ना उसके हाथ की कारीगरी बड़ी अच्छी थी। ही हैड अ गर्लफ्रेंड, जो आजकल बड़े केसेस होते हैं, गर्लफ्रेंड्स को तो पेरेंट्स ने बोल दो कि लड़का भगा के लाया था। तो पुअर बॉय वाज इनसाइड द जेल फॉर 8 years और लड़की की शादी हो गई थी किसी और से, विच इज़ वेरी सैड, बट दैट बॉय वाज वेरी टैलेंटेड। जब पैरोल में आता था वापस, वो पैरोल से जब उसको छुट्टी मिलती थी, गांव जाता था, बिकॉज ही हैड अ वेरी गुड कैरेक्टर एंड हिज एक्शंस वर वेरी गुड, तो पैरोल आराम से मिल जाती थी, जबकि बहुत गरीब था। वो गांव से मेरे लिए ना थैले भर भर के अनाज लेके आता था। मैं बोलती बेटे मत उठाया कर। तो मुझे अभी याद आ रहा है कि नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन तभी शुरू हुआ था, तो मेरा ड्राइवर जाके वहाँ से गांव की उगी गेहूँ और चावल 2-2, 3-3 किलो के थैले उठा के वो लेके आता था, विच वॉज सो ब्यूटिफुल फॉर मी। एंड अभी तक उसके फादर को मैं याद करती हूँ, वो बोलते आप हमारे बच्चे का ध्यान रख रहे हो। सो मैं उसको बोलती थी कि आपका बेटा हमारी स्कोप का ध्यान रख रहा है। सो इट्स अ गिव एंड टेक।
आपके स्कूल का नाम क्या है? मेरा नाम देवती विश्वा, स्कूल का नाम भी देवती है, JPS के नाम से ही। आपके नाम पे स्कूल है? आप बच्चों को क्या क्या पढ़ाते हो यहाँ पे? बच्चों को प्ले से लेकर 5th तक पढ़ाते हैं और फिर सरकारी स्कूल में जाते हैं। ठीक है। और सीमा मैम को आप कैसे जानते हो, कब से जानते हो? मेरे हस्बैंड और तरुण मैम ऑफिस में काम करते थे ना, तो तरुण मैम की वजह से सीमा मैम को जानते हैं। ठीक है। मैम ने आपकी क्या क्या मदद की है? कलर वगैरह दिए थे एक बार, और बच्चों के लिए कपड़े दिए थे, जैकेट वगैरह कुछ, और कंप्यूटर दिया है। अभी भी मैम से आपकी बातचीत है और मैम मदद करती हैं? मैम से बातचीत भी है, मैम आई हुई थी प्रोग्राम में हमारे, और फिर से मैम को बोलूँगी कि आप 15 अगस्त का जरूर टाइम निकालें, आए। नाम रामकिशोर और मैडम का नाम है सुमित्रा। आप मैम को कितने साल से जानते हो? मैं 20 साल से। और आप? 15-16 सालों से। आप मैम को कैसे जानते हो? मैं मैम के से जुड़ा था, एक मसाले वाली आंटी थी जो भी यहाँ पर सामने वाले ब्लॉक में आती थी, ठीक है ना, तो उनके थ्रू मैं इनके यहाँ जॉब लगा था मैम के यहाँ पर, इसको प्लस के अंदर। और आप कैसे जानते हो मैम को? मैं रामकिशोर के थ्रू, इनके थ्रू, जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद में 1-2 साल में घर पे रही, और फिर उसके बाद में मैम ने मुझे बुलाया कि आके आपकी मिसेस को लेके आओ, एक बार मिलवाओ मुझसे, वो क्या कर रही हैं घर पे। फिर मुझे बुलाया, फिर बात करी, बोले आप घर पे नहीं रहोगे, आप जुड़ो इसको प्लस NGO से, कुछ सीखो। फिर मैं ऐसे करके मैम के साथ जुड़ी। आप मैम के बारे में कुछ बताएं हमें। मैम के बारे में, मैम का जो है काम है, क्या कहते हैं, NGO जेल में था पहले काम मैडम का, ठीक है ना, जैसे फाइल फोल्डर और ये जूट बैग, ये सब कुछ बनता था जेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मैम का क्या कहते हैं, मैडम ट्रेनिंग भी देती है जेंडर पे, सही है ना, और बच्चों को भी देती है, और मैडम पुलिस ट्रेनिंग भी देती है, पुलिस वालों को भी काउंसलिंग करती है, ट्रेनिंग देती है, वहाँ पर भी जाती हैं। आप मैम के बारे में कुछ बताएं। मैम को एक तो प्लांट से बहुत लगाव है, प्यार है, फूल पौधे, फूल तो फेवरेट है। छत देख रहे हो आप ये मैम की, सारे फूल वगैरह बच्चों की तरह, मतलब कि इतना प्यार करती हैं वो प्लांट। और एक फजल बनाने का शौक है मैम को, फजल बनाते रहते हैं वो। भैया आपका नाम क्या है और आप काम क्या करते हैं? दिनेश नाम है मेरा, मैं हेलमेट बेचता हूँ रोड पे। आप सीमा मैम को कैसे जानते हैं और उनके बारे में कुछ बताइए। हम तो यहाँ पे हेलमेट बेचते हैं, मैडम का घर यहाँ पास में ही है, हमारे पास ही है, तो बराबर आते हैं, तो मैडम से हमारा जान पहचान है। मैडम पूछते रहते हैं हमारे बारे में, बेटा ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैडम के बारे में कुछ बताइए, मैम कैसी हैं? मैम बहुत बढ़िया है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखते हैं हमारा जी। See her as a person, I see her as a friend. सही है कि नहीं? मैं वो तो friend है मेरी. How I don't evaluate a friend. My name is Sudha Suri, and I and Seema have been friends for a very, very long time. I think it was in 90s that we got together, and she had just started school. Actually, her husband and my husband were colleagues at one point of time, and so we have a friend circle which is very, very close, and Seema and me are part of that. Now Seema has with Seema the scope and when she was working in scope and working in the Tihar jail, that was the time I was doing my naturopathy and acupressure, and I was also dealing with other things, and that was the time we got together and worked for Scope. I also went to Tihar jail for acupressure camps, and then she used to do these camps for children, where she used to do the vocational camps for children, and I used to also go for that. And also after that, many times I have gone and talked to students. Then of course we parted ways. I was not very active in Scope, but now that Seema wanted to do naturopathy, which I had done about 30 years back, and so that is how she wanted to do, and so I just told her how I had done and what I had done, and she got very, very interested in that, and she did amazingly with that.
and so proud of her because she did it so well. And I mean, surpassing what I thought she would do, because she is so active. And one thing that I like about Seema is she's very, very enthusiastic. She is like, she would like to do 1001 things at one time, and she will do it well. And that is and she has those leadership qualities and organizing qualities which are amazing. And she has this will to help people, which she does it beautifully. She brings people together and makes them work, and she is very good at getting work done also. And that is a great what do you say? It's a great thing to do, when you can motivate people to do work. And that is why I think it's a great pleasure to be a friend of hers. हेलो, मेरा नाम आशी है और मैं मास कॉम कर रही हूँ मानव रचना यूनिवर्सिटी से। और मेरा नाम क्रिश है और मैं बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ तिगनू कॉलेज से। हमने सीमा मैम के साथ एज अ वॉलेंटियर जुड़ के बहुत ही सारे नेक काम करे हैं। हमें सीमा मैम ने और भी बच्चों के साथ मैरी कॉम, चंदू चैम्पियन ये सब दिखाई थी, इससे हमें बहुत अच्छा लगा था। और एज अ वॉलेंटियर हमने सीमा मैम के साथ बहुत से काम करे हैं। स्वच्छ अभियान भारत में सीमा मैम के साथ जुड़ के हमें काफ़ी अच्छा लगा था और हम ऐसे आगे भी सीमा मैम के साथ और एज अ वॉलेंटियर काम करना चाहेंगे। आपने स्टार्ट किया था एनजीओ, और अब आप सीमा मैम को अब देखते हो तो आपको क्या फर्क नजर आता है और क्या चेंजेस नजर आते हैं? सिर्फ एज का चेंज है, देयर इज नथिंग, और कोई चेंज नहीं है उनमें। वो जैसी पहले थी वैसी अब है, बल्कि पहले से ज्यादा सपोर्टिव मुझे लगी। प्रैक्टिकली तो अब मैं उसके साथ हूं नहीं, बट जितनी हमने बात की, हमने अपनी पिछली लाइफ कितनी अच्छी थी, अपनी फ्रेंड्स की बात की हमने, हमारे सर्कल में 3-4 हम थे जैसे, बट सीमा और मैं इकट्ठे ही खाना, उठना, बैठना, जाना, मार्केट तो हमने इकट्ठे ही जाना है। भारती अरोड़ा, I know Seema since 1985. We are friends. You can say she lives in my heart and I live in her heart. One day when we were going to the market, she said, Bharti, let's do something for the society. I want to do some social activity for the poor people. She's very, very, very nice lady, very helpful, very supportive, and very clear-hearted. No doglapan. Straight away. In 94 or 95, when she started this NGO, Scope Plus, she said, Bharti, you are the founder member of this NGO. I said, okay, I will help you. So that time, NGOs इतने होते भी नहीं थे. She worked very hard, and her mother also very supportive. सीमा ने जो भी किया, I'm proud of her. मेरा नाम विजय सिंह यादव है जी। छोले कुलचे पराठे का काम करता हूँ, सामने है जी। आप सीमा मैम को कैसे जानते हो और उनके बारे में कुछ बताइए। मैम इधर आती जाती है, कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है तो बात पूछती है हमारी, ऐसे जान पहचान हो गई। मैम के बारे में कुछ बताएं, उनका स्वभाव कैसा है। मैम का स्वभाव बहुत अच्छा है और हमारे जैसे गरीबों के लिए काफी अच्छा है। खूब मदद करी है, मेरे लिए तो सब तरह से मदद करी है। कुल मिला के बात यह है, कपड़ों से, जूतों से, जो भी चीज होती है सब कुछ पूछती रहती है मैम, ऐसी बात नहीं है। और ये जो पक्षी, कौआ, चिड़िया, इनके लिए भी वो खूब मदद करती है।
I have been with Scope Plus ever since it was founded, and the best thing about Scope Plus is that the intention with which they started can be seen in the team even now. After around 30 years also, they feel passionate about helping people wherever they can. Seema has been dabbling in various aspects of social work with the only purpose of giving back to the society and making a difference in the lives of people. I wish her all the best, and I wish that Scope Plus continues with the same passion for the welfare of people. My name is Suchitra, and my association with Seema Auntie and Scope Plus goes back to when I was a little kid. I still remember that while she was teaching us, she would always say that she wanted to make a visible impact to the society. What can she do? And she had that spark, that passion to do something different besides her societal duties of being a mother, a daughter, a wife, or a daughter-in-law. And that vision of hers was Scope Plus. Yes, she really grew that spark that she had within her into an initiative called Scope Plus, which empowered the lives of so many individuals. So whether we just contributed in terms of showing up with small initiatives, or make some awareness campaigns, or do any kind of voluntary activities, she didn't make you realize that you have to do something on a large scale, but even small acts can make a huge difference. The most inspiring thing about her is that she had been able to motivate and encourage housewives who were just buried in their household work and really come out of that hole of just their home, kids, husband duties, and come out and even contribute where they can make a societal impact. So thank you, Auntie, for inspiring. You are truly a visionary leader, and all I can say is that she still inspires us, because even at office when I contribute and terms of some volunteering efforts, where does that zeal come from? That comes from you, because you have been able to motivate us and really inculcate that in us. So thank you so much, and all the best for many, many more years at Scope. My name is Surat Grover. I will be 86 years old in September. I joined Scopes when Seema was working in the hard jail, and that was many, many years ago. She was encouraging the women to read and write. I am not actively involved with the Scope, but Seema keeps me updated about the different projects she is doing and involved. I do volunteer work where I live. It is a senior citizen community. There are different groups who do volunteer work. I do knitting for needy people. Our group knits different things and donate to the different charities. I also make greeting cards which are delivered to the nursing home to the sick people. We let them know that we care for them and think about them. It gives a great pleasure to see them smile on their face. For young people, I think it gives them self-esteem for being useful to others. It also helps in personal and professional growth as they meet different kinds of people while helping them. That's the only way I think that helps them, and it's a good thing to do, and it starts from the heart. Thank you. Bye-bye.